Superstitious believes the Amravati district of Maharashtra has been a high-risk region for malnutrition among mothers and children. Reckitt's Reach Eat Child intervention has helped improve the infrastructure and malnutrition status of this region. We visited these health centers in Amravati and Nandurbar in Maharashtra, which is our commitment to the Chief Minister of Maharashtra under VSTF Reckitt partnership. We thought let's do the deep dive and go into the field and see what's happening at the field level. We saw it was in a very, very dismal stage, and we thought we will invest significantly because one of our aims is to leaving no one behind. It is the Meghat region, which is a tribal region in Amravati. This nutritional and rehabilitation center was there since 2012, and it is the first NRC in Amravati district because Meghat is very famous for malnutrition. I joined in October 2020 as a medical superintendent over here. At that time, when I came to see this NRC, it was in a very poor condition. एक्चुअली यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था, टॉयलेट फैसिलिटी का प्रॉब्लम था, रहने के लिए चीज़ों का काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स था, बट स्टिल यहाँ के जो डॉक्टर्स थे सब लोग मैनेज कर रहे थे बच्चों को. इन द मीन वाइल मिस्टर रवि भटनागर फ्रॉम डेटॉल कंपनी ही विजिटेड टू अवर एनआरसी कि इनका रिनोवेशन करना है. तो मैंने रवि भटनागर साहब को रिक्वेस्ट किया कि सर एज अर्ली एज पॉसिबल आप प्लीज़ हमको ये रिनोवेट करके दीजिए. ही प्रॉमिस्ड मी एंड सेम डे ही टॉक विद हिज सीनियर्स एंड दे स्टार्टेड द प्रोजेक्ट ऑल्सो. This has been indeed our pleasure from Reckitt to work on the tribal health populations, and these are the only centers where large number of kids actually get admitted, and we thought we should give a very nice consumer experience, or I can say the patient experience to all the kids and their families who are coming to for the service uptake of health facilities in these places. NRC developed किया, it was very posh kind of thing and it has a look of little bit hotel kind of look. So यहाँ के जो poor tribal लोग हैं उनके लिए वो look से जुड़ना was not possible क्योंकि उनके घर पे they are living in a झोपड़ी और मिट्टी का घर, पानी का उनका फैसिलिटी डिफरेंट है, रहने के लिए चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है. We discussed कि हम इसको क्या कर सकते हैं, तो we have done this Warli painting to the in the NRC so that they should have that traditional feel. देन हमने बच्चों के हैंड प्रिंट्स लगाए हैं हमारे एंट्रेंस पे. जो हम कोई नए घर में एंट्री करें तो कैसे शुभ के लिए हम घर के फैमिली का जो फिंगरप्रिंट लेते हैं, वैसे हमने वो बच्चों के हाथ के प्रिंट्स लेके उनको वो एक अपनापन दिया. When the urban kids can actually get best of the health facilities, why can't the similar kind of facilities be developed in the regions which are tribal in nature and others? One patient is there, Gayatri Dhande. She is a 10 months child. जब वो बच्ची आई तो she had got loose motions, vomiting, and as well as she has malnutrition. Her weight was 6 kg, 400 grams. So she required both treatment as well as nutritional rehabilitation. But उनके पेरेंट्स तैयार ही नहीं थे उसको एडमिट करने के लिए. सबसे पहले तो वो नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा एडमिट हो. उन्होंने सीधा बोल दिया कि हमारा बच्चा है, हम जो होगा देखेंगे, आप प्लीज़ बॉदर ना करें. मेरा बच्चे बहुत पहले सीरियस ही था, यहाँ पर भर्ती हुआ कि बहुत अच्छा हो गया. मेरा बच्चा पहले नाक से दूध पीता था, अब मुंह से पीने लग गया, खेलने कूदने लग गया. अच्छा है. यहाँ पर आने का को मना कर रहा. इन लोग को इंजेक्शन लगातार करके उन लोग नहीं आने दे रहा था मेरे को, लेकिन मैं आ गया. अच्छा सुविधा है, टेबल अच्छा खाना मिलता, फिर दूध भी अच्छा मिलता. अभी मेरा बेटी पहले बहुत सीरियस ही था, अभी अच्छा दिखने लग गया पहले से. अभी उसका वजन ही अच्छा बढ़ गया, पहले बहुत कम था. तो ये अभी धीरे धीरे अपनी स्टडी लेवल पे आ गई है, और अगर हमारे पास 10 डेज रहेगी तो उसका वजन हम बढ़ा भी देंगे विद आवर डाइट एंड प्रोटोकॉल. एक और बच्ची है, शी इज़ अ प्रॉपर ट्राइबल पेशेंट, प्रांजलि मावस्कर. वो 10 मंथ्स की बेबी है, वो भी सीवियर एनीमिया था उसको. हेमोग्लोबिन वाज उसका 6 समथिंग. हर वेट वाज आल्सो लाइक दिस 5.400 ग्राम्स. एंड उसको बस इतना ही था कि उसके पेरेंट्स थोड़े सपोर्टिव थे, दो दे वर ट्राइबल,
बट दे वे सपोर्टिव एंड दे अंडरस्टूड कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या देना चाह रहे हैं, हम उनके भले के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। ये उसकी मम्मी ने बहुत जल्दी ग्रास्प किया एंड उसकी वजह से शी गॉट एडमिटेड एंड उसका भी हमने फिर ब्लड वगैरह लगाया। आज उसका HB 11.5 है और उसने भी मतलब 1 किलो वेट गेन कर लिया है। पहले इसकी बुखार था इसलिए भर्ती हुआ था यार। इसके वजन कम था पहले, इसके वजन कम की वजह से NRC में भर्ती हो गए। तो इसके वजन पहले 6 किलो 600 ग्राम था, तो अभी खाने पीने से उसको फर्क आ गया है, 7 किलो 300 ग्राम हो गए। दूध पिलाया, सुबह 6 बजे मिलते दूध, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, बस 6 बजे। खाना का भी सुविधा अच्छा है, टाइम पे खाना मिलता है, टाइम पे दूध मिलता है, सब अच्छा है। वहाँ पे बनाया बच्चों के लिए टॉयज़ भी हैं फैसिलिटीज़ के अंदर, क्लीन टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी है, हैंड वॉशिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी है, हैंड सैनिटाइजर्स वहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। सो ऑन द टॉप ऑफ दैट सैनिटरी पैड्स भी अवेलेबल कराए हैं, वेंडिंग मशीन भी वहाँ पे अवेलेबल है, जिससे मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी इसमें कवर हो रहा है। यहाँ के लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो लेकिन उनको हॉस्पिटल ही बहुत पसंद नहीं है। उनको एक्चुअली यहाँ पे भूमिका और पड़ियार मतलब इट इज़ बाबा टाइप ऑफ ट्रीटमेंट करने का उनको आदत था। तो उनको ये समझाना कि नहीं, आपके बच्चे को ये बीमारी है, उसको ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ये वॉज अ बिग टास्क। मैं डॉक्टर दयाराम जावरकर, मैं सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कोरको कम्युनिटी, और 2005 से यहाँ पर मैं एक सर्विस दे रहा हूँ। मेरे आने के पहले यहाँ पर कोई डॉक्टर्स आने को तैयार नहीं थे, पीडियाट्रिशियन तो दूर की बात थी, गायनेकोलॉजिस्ट की सेवा नहीं थी, कुछ नहीं। लेकिन फ़िलहाल जब से यहाँ पे सर्विस दे रहा हूँ, लोग दवाखाना आने के लिए तैयार नहीं थे। मेरघाट में 80% जो लोग थे जो अब दवाखाने के सर्विसेज लेना पसंद नहीं करते थे। जहाँ तक यहाँ पे मेरघाट में भूमिका पड़ियार जो लोकल ट्रीटमेंट रहता है उसी पे ज़्यादा विश्वास रखते थे। लेकिन अभी इतना बदल चुका है मेरघाट कि 80% लोग दवाखाने की फैसिलिटी ईजीली लेते हैं और 20%, 10 से 20% जो लोग हैं कि जो अभी भी वही राह पर है, जो भूमिका पड़ियार इनके पीछे लगे हुए हैं। वैसे ही एक बच्चू है जो रामिया माखनलाल ध्रुवे, 11 महीने की है, धारणमल गांव से आता है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पर है। और वो आए थे उस समय 4 किलो 400 ग्राम ही थे। बाद में फिर तीसरा दिन से उनका वज़न बढ़ना चालू हुआ। पहले वज़न कम था कि इसका यहाँ पे आके बढ़ गया 1 किलो ज़्यादा। यहाँ का जानकारी हमारे गांव को नींदन है, वज़न बढ़ जाएगा तेरे बेटी का, अच्छा खाना मिलता, सब कुछ इसके लिए आया। खाना खाता घर पे है, क्या बना वही खा लेता। दूध नहीं मिलता कि नहीं सुता, उसका खाना नहीं मिलता, धार की जाता तो घर पे कोई नहीं रहता, अकेले घुमाजोरी करता कि ना। ये घर पे था, बच्चों ने देखता, हाँ पतला हो रहा था, खाने के नहीं मिलता कि बच्चों ने खा लाता। बड़ा इंसान रहता तो ख्याल रखता था। अब बेटेम हो जाता दिन दूध पिलाने में, और सवेरे से निकल जाता, शाम में आता। यहाँ का सबका खाना पीना सबको सुविधा है कि नहीं, बच्चों को भी मिलता, अपन को भी मिलता। अभी 12वां दिन है, उसका 15% वेट गेन हो चुका है और कुछ बीमारी नहीं है, अभी बहुत अच्छी है। मदर भी बहुत सक्षम होकर जा रही है अभी। आई एम वेरी प्राउड टू शेयर ऑन कैमरा लाइक दिस स्मॉल गर्ल Navneet. She is fully well, fully cured. She has no relapse of SAM. Even she didn't fall into the category of moderately malnourished, category. And we were able to provide the food security and health security both to her and her parents. So basically this whole support was under the voucher scheme what we have provided to all the families which have the severely malnourished kids. सर इतना तबीयत ख़राब हो गया था कि उसका हालत एकदम संडास उल्टी बहुत चालू हो गया था। और उसके बाद में फिर वो मैडम ने बताई कि वो श्याम में वहाँ खाना मिलता है NRC में, जया मैडम ने बताया कि NRC में भर्ती करो तो उसकी तबीयत अच्छी हो जाएंगे, बोले वज़न भी बढ़ता, फिर पैसे भी मिलते। ऐसे मैडम ने हमको समझा के बताई सर, पैसे मिलते
मुझे प्रतिदिन 100 रुपये रोज़ के हिसाब से मिलेंगे। बोले बच्चे को खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, उसका वज़न भी बढ़ जाएगा, ऐसे करके समझा के बताई सर। मैंने बोले ठीक है मैडम, हम भर्ती हो जाएंगे। तबीयत बच्चे का तबीयत भी उल्टी संडा चालू है, वज़न भी कम है, वज़न तब 6 किलो था सर इसका। और फिर वहाँ खाना पीना, उसके खाना दवा गोली से तबीयत भी अच्छी हो गई और वज़न भी 14 दिन में 800 ग्राम उसके बढ़ गए थे सर। हम 14 दिन भर्ती थे तो 1400 रुपये मिले हाथ में और कैश दिए सर मैंने। और उसके बाद नवंबर महीना में 4700 रुपये अकाउंट में आए सर। इसके नवनीत के लिए खाना लाए सर, खाना पीने कुछ काजू बादाम ऐसे फल फ्रूट लेके, और उसकी तबीयत में खर्चा किए सर। तो उसकी तबीयत भी तब से अभी ख़राब भी नहीं ना, दवाखाना भी नहीं गए। वो मैडम ने बताया उसके हिसाब से खाना पीना उसको चालू रखते, तभी तक तबीयत भी ख़राब नहीं हुई सर उसकी, और अभी अच्छी है। When we went to the ground, that while we had facilities that were being maintained reasonably well by the district officials, by the doctors, by the nurses there was scope for improvement. पहले हेल्थ सेंटर में क्वार्टर, लेबर रूम, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत अभी हमने चेंजेस कर दिए। अभी यहाँ पे हर पीएचसी में अच्छा लेबर रूम वगैरह बनाए। And there was a need to create this welcoming atmosphere so that, because you see, when we look at nutrition rehabilitation centers, mothers have to stay with their children for 14 days. So it needs to be a comfortable space. It needs to be a space where the mother feels safe, the child feels safe. तो हमने वही फोकस किया उन पे। तो जो भी डिलीवरी, पहले होम डिलीवरी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, लगभग 50-60% था। अभी वो होम डिलीवरी का परसेंटेज 20 से 30% तक आ गया। तो इससे हमारा क्या है, मैटरनल मॉर्टेलिटी वो भी कम हो गया। और जो होम डिलीवरी होने से जो डेथ हो रहे थे नियोनेटल, छोटे बच्चे जो नवजात शिशु बोलते हैं, तो वो भी काफ़ी कम हो गए और वो डेथ रेट अभी बहुत कम हो गया। To tell the story of Mohini is very, very interesting. She is one of the community nutrition workers working with the Reckitt funding on the Nutrition India program. So she used to actually travel around 8 to 9 kilometers on foot daily, and the terrain is hilly and it's a rainy season and it was very hot in the summers. तो रवि सर ने मुझे पूछा कि आप कैसे आते हो गांव से। तो मैंने कहा सर मेरा गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, तो आते कैसे आप वहाँ से? तो मैंने उनसे कहा कि मैं पैदल आती हूँ। So I said like how I can help you. Then she said this is my destiny. I said like but this project is to change the destiny of all the people whom we are working with. सर ने फिर मुझे कहा कि आप पैदल नहीं आएंगे आज से, आप साइकिल ले लो, मैं पैसे देती हूँ। मतलब पहले पैदल आने से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। हाँ, अब ज़्यादा मतलब पहले से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा घुल मिल चुके थे, सभी से बातें, सब जितना मुझे काम करना रहता था उतना काम भी हो जाता था। मतलब बहुत से सारे ऐसे बेनिफिशियरी से मिल भी लेते थे, अच्छे से बात कर लेते थे आराम से बैठ के। सब ऐसा घाई नहीं रहता था घर जाने का कि मतलब हमको पैदल जाना है, बारिश होने वाली है। अब ऐसा कुछ टेंशन नहीं रहता था साइकिल आने की वजह से। So we are on it, and I'm sure these small humble beginnings will lead to some good outcomes, especially the health outcomes in the future. We are actually moving from there to reaching out to 10 million moms in the year 2021. So from some hundreds to reaching out to the million, that to providing the quality health services. With the core bottom line is actually improving the improving the anemia level among the girls and the women. पहली बार सीजर हुआ तभी हीमोग्लोबिन कम था हमको, यानी कि डिलीवरी के टाइम तक 10 भी नहीं ग्राम नहीं थे, 8 ग्राम 4 पॉइंट थे। उसकी वजह से यानी कि मेरा
हीमोग्लोबिन पहले से कम था और डिलीवरी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते ब्लड भी चले गए थे। इसकी वजह से जन्मा था उसका वज़न अच्छा था, 2.25 किलो भरा था वो लड़की, पहली भी लड़की है दूसरी भी लड़की है, तो उसकी वज़न जन्मा था अच्छी थी 2.25 किलो, फिर बाद में कम होते होते कम ही रह गया उसका। और उसको ना एक प्रॉब्लम भी ऐसे कि टॉयलेट की वजह से वो वजन नहीं बढ़ रहा है उसका यानी कि कमी कम है, तो पूरा फिर वो इसमें चली गई है मैम में। पर अभी यहाँ कोर्स किया मैंने, ये 21 दिन का CTC में डाला। ये दूसरी यानी कि मेरी ये दूसरी लड़की भी पेट सी थी, तब उसके टाइम पर मैं CTC में दोनों भी हमें एडमिट हुए, दोनों ही एडमिट हुए, तो तब उनका 21 दिन का कोर्स किया मैंने, तो अभी वज़न भी अच्छा है दोनों का। और फिर इस बार भी दूसरी बार भी सीजर हुई, तो उस बार भी फिर कम था मेरा शुरुआत में, पर CTC में फिर आयरन की 4 सलाइन वो छोटे छोटे बॉटल लगाई उन्होंने 100 ग्राम वाली, तब से इस बार दूसरी बार कुछ तकलीफ नहीं हुई, यानी सीजर भी अच्छा हुआ और ऑपरेशन भी उसमें किया मैंने, तो ऑपरेशन भी अच्छा हुआ। हमारे इसमें आंगनवाड़ी रहती ना, मैं वहाँ गई थी, इसका इंजेक्शन था, तो उन्होंने बताया कि इसका वज़न कम है करके आप यहाँ पर एडमिट हो जाओ। हीमोग्लोबिन कम था थोड़ा, तो खाता ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाता, कुछ रोटी सब्जी दाल चावल कुछ फल फ्रूट तो काहीच नहीं खातो। इसके पीछे पीछे होता नहीं ना सर, ये बहुत ये करता मस्ती करता, इसके पीछे रहना पड़ता। 4 दिन से हूँ मैं यहाँ पे, खाना अच्छा मिलता, बच्चे का भी ख्याल अच्छा रखा जा सकता है। घर से तो यहाँ बेटर है, घर पे कैसे काम करना पड़ता है, इसके ध्यान, इसके पापा का ध्यान, तो यहाँ सिर्फ इस पे ही ध्यान है मेरा, सिर्फ इस पर। वहाँ पे सब कुछ करके इस पर ध्यान देना था, खाना पीना ये वो, और यहाँ सिर्फ इस पे ही ख्याल है मेरा, इसको खाना पीना सब वो अपने हाथ से खाना। घर पे मैं खिलाती तो नहीं खाता, और खुद भी नहीं खाता था, यहाँ पे खुद खाता, सब कुछ खाता, बनाना फल फ्रूट सब खाता, घर पे नहीं खाता था। यहाँ पे बच्चे हैं ना, वो खाना खाते तो मम्मी वो दो, मम्मी वो चाहिए मुझको, मम्मा बनाना चाहिए, ये चाहिए, मम्मा मुझको भी सब्जी चावल ये चाहिए, ये बोलता ही तो खा लेता। They have many other problems, illiteracy, poverty, they are fighting with that. Because of that, their children, they are landing up with undernourished, severe acute malnourished children. We are helping them for that, but they may not understand because they are struggling with many other issues. And for 14 days of treatment, and afterwards what they feel like that ki going to modern medicine, what we practice allopathy and all that, that is very costly, If you go to the modern medicine doctor, he may advise so many investigations, he may have costlier medicines and all that. They were their beliefs, so they were not ready to come for the NRC treatment and all that. But once we started with government also paying remuneration 100 rupees per day, even this Plan India, Nutrition India people, they had vouchers for them, they were paying something for them for staying in for 14 days, and the infrastructure and the outcome after the treatment, once they have seen that the outcome is good, my baby is coming out of the malnutrition, then they have started coming. Initially they were not, still there are so many their kids and their parents, they are very stubborn, they won't be able to ready. What we practice here is we will show them the success stories from these similar regions. They see this child was from your region only, he was malnourished, his parents also were not willing for admission, what we have done. So we are serially recording 14 days treatment, and we are giving them the presentation that how the child was before treatment and after treatment, and then they are getting convinced. तो अभी तो ये हो गया कि जो धारनी मेलघाट के जो भी बच्चे हैं वो भी हमारे यहाँ खुशी से एडमिट होते हैं। 14 दिन के बाद में भी वो रुकने को तैयार होते थे, और जब तक उनका वज़न बढ़ता नहीं हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से, तब तक वो जाने को भी तैयार नहीं होते। बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है, और हमारे डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि सर अभी
बहुत ज़्यादा पेशेंट रुकते हैं और बहुत ज़्यादा एडमिशन भी हो रही है। Their moms know themselves, they can choose better, they can decide better, they can start their treatment earlier so that the diseases are not getting more complex and they go to the right type of healthcare provider on priority, resulting into a reduction in mortality and morbidity. उसी हम उद्देश्य से काम कर रहे हैं और हम आगे भी उस पर करते रहेंगे। धन्यवाद।